अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। So let's start. Uh, I hope you all are able to hear my voice. Abhi. So I think only B1 C2 students are there today. Okay. 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 Even if one answers, then I think I get the answer. ठीक है, बार बार आप सब लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बात को, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है और कुछ नहीं होता। तो yesterday, let's have a quick revision of what we did yesterday. So if you remember that yesterday we tried to make the development of a right prism. So this was our prism, and we tried to make the development of its surface. So this was one of the problem that we did. The second one was of the cylinder. So we try to develop the development of the surface of cylinder. And the third case that we did was of a pentagon. So this was the third case. So it is actually a pentagonal prism. So you can just imagine it in 3D. So if I make it something like this, so it will be. Actually, it's not. It's every side is 108 degrees. So you can just imagine. Okay, it's nothing very technical in this. So this is what we did yesterday. Now let's talk about a bit complicated problem. A bit complicated, not too complicated, we would say. So I think let's start with this problem. You can note this problem down. If you have the pen and pencil with you, I think you must have the pen and pencil with you because the drawing cannot be learned without the paper and pencil. So just note this one down: a pentagonal prism with base 30 millimeter
and axis 50 millimeter long is resting with its base on horizontal plane, and one edge of base is parallel to and away from vertical plane. ठीक है, इसको आप नजर आ रहा हो, इसको आप नोट कर लीजिए. ठीक है, so shall we start with the problem? हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? तो शुरू करें. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने नोट डाउन कर ली है. अब मेजर सबप्रिज्म प्रिज्म, तो इसमें क्या दे रखा है? प्रिज्म की बेस जो है वो 30 मिलीमीटर है एंड its axis is 50 millimeter long. So we have this prism with me. I have made prism with me. So what we learned yesterday, that the first step is we make the top view, then we go to the elevation or the front view, and then from this we go to the development of surface. ठीक है. Now what this question is saying is that the pentagonal prism with base 30 millimeter and axis 50 millimeter long is resting with its base on horizontal plane. So if you see, if you consider this as plane of planes, so this is called a vertical plane and this horizontal plane is called, and this plane is called the horizontal plane. Okay, so I hope that you know this thing. And okay, so it says that 50 millimeter long is resting with its base on horizontal plane. So the base is on horizontal plane and one edge of the base is parallel to and away from vertical plane. So this is how it will look. This is how it will look when we see it from the top. So I've made this thing. Now they are saying that the prism is cut by a sectional plane perpendicular to the vertical plane and inclined at 30 degree to the horizontal plane and bisecting the axis. Let's first draw with our elevation first, and then we will see what it says, what it tries to say. We will see. So as I told earlier, we made the pentagon with 30 millimeter sides. Now we just have to extend these things through the projection lines. We extend this and it says the axis is 50 millimeter long. So we make the axis as 50 millimeter. So we take 50 millimeter from here and we mark it this. So
our front view. Now, as I told earlier, that this line will be dashed line, okay, because we cannot see this line, so this will be a dashed line. Now, what we have to do is, it says that G डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको इससे अच्छा समझ में नहीं आएगा अगर हम, ठीक है, तो let's, it says that the prism is cut by a sectional plane perpendicular to the vertical plane at and inclined at 30 degree to the horizontal plane and bisecting the axis. Axis क्या होगी इसकी, ये जो इसकी किसी की भी एक्सेस क्या होगी, इसकी सेंटर लाइन जो है वो एक्सेस होगी, तो एक्सिस को ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मींस इट विल डिवाइड इट इनटू हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज 50 मिलीमीटर, so we divide this into half and we make a horizontal line like this. Now what we have to do is, the angle it says 30 degree to the horizontal plane, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रोटेक्टर से 30 डिग्री का एक एंगल मेजर करेंगे और हम इसको अपने फ्रंट व्यू को इस तरीके से कट करेंगे। तो ये जो फ्रंट व्यू है, ये तो हमारा जो फ्रंट व्यू था वो है, लेकिन हमको क्या करना है, हमें देखना है कि सेक्शन प्लेन कहां से कट करना है, तो हम उसके हिसाब से अपना फ्रंट व्यू बनाएंगे। सेक्शन प्लेन कट होने के बाद, यानी हमने अपना प्रिज्म को ऊपर के साइड से काट दिया, अगर ये इस तरीके से वर्टिकली है प्रिज्म, तो हमने यहाँ से जब इसको एंगल के साथ काटा है, तो अब क्या एलिवेशन आएगा हमको वो देखना है। तो बाकी प्रोसीजर अभी इस पॉइंट को हम जो है मेजर कर नाम देते हैं, अगर हम इस पॉइंट को नाम दें 1, इसको नाम दें 2, 3, 4 और 5, तो इन लाइंस को हमने प्रोजेक्ट किया था, तो इनको हम नाम दे सकते हैं 1 डैश, 2 डैश, 5 के ऊपर ये आया 5 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। और ये लाइन हमने 30 डिग्री पे सेंटर से बनाई, क्योंकि हमसे ये कहा था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारी एक्सिस को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर यहां तक किसी को कोई इशू है तो वो अभी बता दे। पेंटागन कैसे बनाया है? हाँ सर, ये जो स्क्वायर है इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितने डिस्टेंस से है? कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन की आप बात कर रहे हैं? सर मिड में ये देखिए क्वेश्चन में दिया है कि बाइसेक्टिंग द एक्सिस, बाइसेक्टिंग द एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ये हाफ में इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर
ये हमारा 50 मिलीमीटर का है, देन इट विल बाइसेक्ट एट 25। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये पेंटागन कैसे बनेगा, इसके दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज, वन इज arc method and the other one is directly by measuring angles। ठीक है, arc method is a bit long method but more accurate, and by measuring angles you can directly, अगर arc method से आपको बनाना है and it's better to make through arc method। I hope आप लोगों को ये चीज 10th में पढ़ाई गई होगी कि किस तरीके से पेंटागन बनाया जाता है। If not, then I will make a video because I don't have enough time कि मैं आपको आर्क मेथड के साथ पेंटागन बनाना यहाँ पर सिखाऊं। तो I can make a video and I will upload it so you can watch that video, and from that video you can learn how to make a pentagon by arc method। Right now कौन बोल रहा है ये अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर? ओके, ठीक है। बाय मेजरिंग एंगल्स हम कैसे बनाएंगे? हम ये जानते हैं कि पेंटागन में किसी भी पेंटागन के दो साइड्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 108 डिग्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी पेंटागन बनाना है, फॉर एग्जांपल इसमें 30 मिलीमीटर दिया है तो लेट्स मेक अ 30 मिलीमीटर पेंटागन। ये 30 मिलीमीटर की हमने लाइन बनाई, देन वी मेक टेक अवर प्रोटेक्टर and we make a line of 100 and we make a point of 108 degrees and we make a line of 30 millimeter from here to here। तो 30 मिलीमीटर की लाइन ये आ गई। Now similarly what we have to do is that we measure an angle of 108 degree from here and we make a line of 30 millimeter from here। Now we have these points। Now what we can do is that we take the compass, we take 30 millimeter arc, we draw one arc from here, this point, and one arc from this point, and we join the intersection of this point with these 2 points। Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay. Any other problem? Any other issue? Till here? Till this step? जी क्या बता दें? पेंटागन में पेंटागन में जो दो साइड्स के बीच का एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। ठीक है,
तो जैसे अभी हमने दोबारा बता देते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो we made a line of जितने भी उसकी बेस साइड होगी उतने की हम लाइन बनाएंगे। तो इफ इट्स 30 millimeter, so we made a horizontal line of 30 millimeter. Okay, now we know that the angles are 108 degrees each. So from point A, we measure 108 degrees. So we go like this, and we see that 108 degrees lies somewhere here, and we make a line of 30 millimeter between, or for more simplicity we can say that, okay, we make a light line and we cut an arc of 30 millimeter from here to here. Okay, and we make this line like this. So this line AB is 30 millimeter, and this, from this point to this point, this AC is also 30 millimeter. Now, and also this angle is 108 degrees. Now, similarly from point B, we make 108 degrees angle. We join this point with a light line. We make the arc at 30 millimeter, intersecting this line, and we make the line. Okay. Now we have 30 millimeter with us. So from point D, we make an arc like this, and from point C we make an arc like this, and this point where it intersects, we call it point E. So we join point C with point E, and we join point D with point E, and here we get our pentagon. Clear? Okay. So let's start from here. So what I did earlier was that first we made the top view of the pentagon. This is the top view of the pentagon. Now, okay, these lines that I'm making like this, these lines are called projection lines. Okay, these lines are called projection lines. So what I did was that from point 1 I made a projection line, from point 2 I made a vertical projection line, from point 5 I made a vertical projection line, from point 3 I made a vertical projection line, and point 4 I made a vertical projection line. Clear? Yes, sir. Okay. So now the question says that the axis is 50 millimeter long. The axis is 50 millimeter long. So we make a 50 millimeter axis. We make a 50 millimeter line here, 50 millimeter line here, and we join this to make a
rectangular box. And we know the point, we already have made the projection lines like this, like this, like this. So we have the points projected as 1 dash, 2 dash, 5 dash, 3 dash and 4 dash, and these lines with us. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओ Point 2 और point 3 के जो edges हम नहीं दिखाएंगे. पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2 के एजेस आ तो गए अभी नहीं, ये जब आप फ्रंट से देखेंगे, देखिए जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको वो एक एज की तरह नजर ही नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस हेक्सागोनल थिंग, तो अगर आप इसको मैं ऐसे फ्रंट पे रख दूं तो ये लाइन, ये लाइन, ये पॉइंट आपको एक ही लाइन में नजर आएंगे. अगर आप फ्रंट से देखेंगे, आप 2D पे बनाएंगे तो आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एक ही उस पे तो दिखाएंगे. Yes, sir. सिमिलरली पेंटागन के साथ होगा. ये पेंटागन का जो ये सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट, ये आपका अगर हम बात करें तो ये अगर हम इसको कॉर्नर की तरह मान ले, ट्रायंगुलर की तरह मान ले तो 0.5 ये होगा आपका. ऐसे देखिए तो ये 0.5, इसको अगर हम पेंटागन मान लें सपोज यूं करके इस तरीके से, तो ये 0.5 कहीं सेंटर में आएगा. ये हमने यहाँ बना दिया. 0.1 हमने ये बना दिया, 0.4 हमने इस तरीके से बना दिया. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस तरीके से बनते हुए आ जाएंगे एक के पीछे एक लाइन में. इसीलिए हम इसको अलग से नहीं दिखाते. दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड द फ्रंट व्यू. ठीक है? Yes, sir. Okay. So we have made this. It's clear. Now the question says that the prism is cut by a section plane. Section plane का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये पेंटागन है कोई, अगर हमारा पेंटागन है कोई ये, ठीक है, तो कोई सेक्शन ये इस तरीके से हमने किसी सेक्शन के थ्रू इसको काट दिया. ये ऊपर का हिस्सा निकल गया, नीचे का हिस्सा ये रह गया. ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. तो जब हमने इसको सेक्शन से काटा, ये हमने एक ही सेक्शन काटा यहाँ से, और ये सेक्शन उन्होंने बताया कि ये सेक्शन जो कट रहा है ये पास करता है आपके जो एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस की लाइन है, इस एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा. हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री. तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन इसका 30 डिग्री है, तो ये हमने, और इन्होंने कहा कि ये जो है हमारा जो सेंटर से यानी एक्सिस से जो है, इस एक्सिस से मिड पॉइंट पे इसके कट कर रहा है इस एक्सिस के. तो जब मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमने मिड पॉइंट पे एक हमने पॉइंट बनाया, इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, और हमने यहाँ से 30 डिग्री लेके हमने एक पॉइंट बना के हमने ये लाइन क्रॉसिंग द मिड पॉइंट हमने बना दी. अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. अब आपको जब ये बात समझ में आ गई तो ये क्या है, ये जो लाइन बन के आई है ये बेसिकली सेक्शनल प्लेन को हमने फ्रंट व्यू पे दिखाया है. तो सेक्शनल लाइन हो गई है. ठीक है? जो जिस सेक्शन को हमने काटा है ना, जिस प्लेन से हमने काटा है सेक्शन को, ये सेक्शनल लाइन कहलाएगी. ये लाइन, इसको हम बनाते हैं, तो हमने इसको एक उसमें बना दिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड है इस लाइन को बनाने के लिए वो है डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश. इस तरीके से इस लाइन को हम बनाते हैं. ठीक है? तो सेक्शनल लाइन ये इस लाइन को क्या करें सर? डैश डॉट लाइन को क्या करें? सेक्शनल लाइन बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे. इसको रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप डैश लाइन की ही कह सकते हैं. इस तरीके से डैश डॉट लाइन कहलाती है ये. और ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, ये डैश लाइन हो गई. ठीक है?
ये आपकी लाइन जो है ये डैश लाइन हो गई। अब इतना हमने बना लिया, इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, so let's move forward and अब कल हमने बताया था कि जब हमने कल जो बात की है कि हमने किस तरीके से हमने इसको लाइंस को अपनी एक्सटेंड किया था, डू यू रिमेम्बर? कल हमने ये लाइंस अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से एक्सटेंड की थी। अभी तक तो हमने यही बनाया ना, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा बनाई है हमने। अब सबसे पहला स्टेप जो हमने बताया कि ये जो हमने सेक्शनल लाइन बनाई है, ये जो हमने सेक्शनल लाइन बनाई है इसको हम लेबल कर देते हैं ए डैश, बी डैश, और ये इसको ई डैश, सी डैश एंड डी डैश। ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग ए डैश हो गया, 2 के करस्पॉन्डिंग बी डैश हो गया, 3 के करस्पॉन्डिंग सी डैश, 4 के करस्पॉन्डिंग डी डैश एंड 5 के करस्पॉन्डिंग ई डैश। क्लियर? ठीक है, अब ये जो हमारी जो हमने ये रेक्टेंगुलर लाइन बनाई थी ये हमारी लाइट कलर में होगी, और ये जो हमने अभी लाइन बनाई इसको हमने बताया कि डैश डॉट लाइन से बनेगी। लेट्स मेक इट डैश डॉट, ये हमारी डार्क बनेगी। ठीक है, ये हमारा प्लेन आ गया जो हमारा कट होके आया था। ठीक है, तो ये प्लेन हमारा कट होके आया, ये ऊपर वाला हिस्सा हमने हटा दिया, नीचे का जो हिस्सा है ये हमारा कट हुआ है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है ना, तो ये हमने यहाँ पर इस चीज को बना दिया। अब जैसे कि हमने पहले किया था, हम अपनी लाइंस को, प्रोजेक्शन लाइंस को हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्शन लाइंस दोनों एक्सटेंड कर दी, और क्या बताया था हमने कल? कल हमने ये बताया था कि तो हम डार्क बना देते हैं, अभी हम डार्क बना देते हैं, तो बट वी विल हैव टू मेक इट लाइट। ओके, तो ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे। एक काम करते हैं, इसको स्केच से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब हमने जैसे पहले बताया था आपको कि हम पेंटागोनल प्रिज्म है, 30 मिलीमीटर की इसकी वो है, वो 30 मिलीमीटर इसका जो सरफेस निकल के आएगा टोटल कितना होगा, 150 मिलीमीटर होगा। तो अब हम 150 मिलीमीटर इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम ये लाइन बना देंगे इस तरीके से, और सिमिलरली अब ये हमारी रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट होगा।
अब क्या करना है, एज यू रिमेंबर वी डिवाइडेड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सर जो आपने ये फ्रंट व्यू इसका और जो ये रेक्टेंगल इसके बीच में जो गैप दिया है वो कुछ मतलब गैप की कोई लेंथ है या कितना ले सकते हैं? नहीं, आप कितना भी ले सकते हैं, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, एस्थेटिक लगे, देखने में ठीक लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप ना हो जाए, बहुत छोटा ना हो जाए। सर वो एक्चुअली में हुआ क्या? हम्म इस गैप की वजह से क्या हुआ? भाई प्रोजेक्शन लाइन आप बनाएंगे जब यहाँ से, तो आपको एक एस्थेटिक चीज नजर आएगी, नहीं आएगी, कि बिल्कुल घुसा के उसमें बनाएंगे अगर आप, तो समझ में आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आपको डायमेंशनिंग करनी है या आपको कुछ और यहाँ पर मे भी तो डायमेंशनिंग ही करनी होती है, डायमेंशनिंग करनी है प्लस आपको स्पेस होगा तभी आपको क्लियर नजर आएगा, समझ रहे हैं? और कोई बड़ा पर्पज नहीं है, बस यही मेन पर्पज है इसका। ठीक है, सिमिलरली आप ऊपर पॉइंट्स बनाएंगे और आप इन पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे। जब आपका ये कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, रिमेंबर एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ इन अ लाइट लाइन विद लाइट पेंसिल, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, इन लाइन्स को, आपने ए को एक्सटेंड किया, पॉइंट ए जो है वो आपने एक्सटेंड किया लास्ट तक, ठीक है। देन आप पॉइंट बी को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद आप पॉइंट, ये हो गया, अब आप पॉइंट सी को एक्सटेंड करेंगे, सिमिलरली पॉइंट ई को एक्सटेंड करेंगे पहले, तो पॉइंट ई जो है वो आएगा, ठीक है। पॉइंट सी को एक्सटेंड करेंगे, सिमिलरली पॉइंट डी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हुआ, पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया, या पॉइंट ए, पॉइंट बी, we'll see this as उसके बाद आपका आएगा पॉइंट सी, जी बताइए। तो पॉइंट ई होगा मतलब ए बी के बाद? नहीं, पॉइंट नहीं, इसमें जब पॉइंट बनेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, इसमें जब बनेंगे तो अब आप जब इसको लेटरली ओपन कर रहे हैं, इस चीज को लेटरली ओपन कर रहे हैं, तो पॉइंट ई अपनी पोजीशन पे आएगा। जैसे ये है पेंटागन को हमने ओपन किया, तो जब हमने इसको प्रॉपर्ली ओपन करेंगे, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई, इट विल कम एट द लास्ट। हमने यहाँ से ओपन किया ना इसको, वन से जब हमने ओपन किया, यहाँ से ओपन किया है हमने इसको, वन से ओपन करेंगे, तो पॉइंट ई जो है वो लास्ट में आएगा। हम ऐसे चल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 1 इस केस में, ठीक है। अब आएगा पॉइंट सी, पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी आएगा, ये पॉइंट सी आ गया, फिर पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी आएगा, एंड देन पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट ई आएगा, एंड देन वी कम बैक अगेन टू पॉइंट ए। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
इस पर ये वाला टेंशन है, एक को सेकंड लाइन में ले सकते हैं, थर्ड लाइन में भी। नहीं तो ए को सेकंड लाइन में ले सकते थे, लेकिन हमने बताया ना कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से खोलना शुरू किया हमने। आप ये समझ लीजिए कि हमने इसको इस तरीके से खोल दिया, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो फर्स्ट लाइन पे लिया हमने ये, तो ये इस तरीके से है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 1 डैश। अब क्लियर हुआ? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 1 डैश। तो हमने इस तरीके से यहां से इसको खोल दिया है। ये डैश भी हटाइए, तो 1 डैश 1 और 2 3 4 5 कह दीजिए, आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर कुछ समझ में ऐसा खोला किस खोला किस तरीके से है देखिए, ठीक है, दोबारा से बताते हैं, दोबारा से बताते हैं। ये हमने पेंटागन जो बनाया था, ये हमने पेंटागन बनाया था, हमने यहाँ से लाइन एक्सटेंड की, ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड की, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एक पेंटागन बनाया, ठीक है। ये हमने लाइन उसमें मेंशन करी कि ये लाइन जो है ये 1 डैश है, 2 डैश है और ये 5 डैश है, सॉरी 1 डैश है, 5 डैश है, 2 डैश है, 4 डैश है और ये है 3 डैश, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मेंशन किया, और इसको भी हम यहाँ पर 1 2 दोबारा बताते हैं। ये चीज तो समझ में आई, ये चीज तो समझ में आई थी जो हमने ये बनाया था कल। 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 5 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, ठीक है। अब जब हम यहाँ से इस चीज को 1.1 से अगर हम इसको खोलते हैं, we open this from point 1, तो हमारे पास क्या साइड्स आएंगी 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 1 आएंगी। तो यही चीज तो है यहाँ पर 1 2 ये एक साइड हो गई, 2 3 ये एक साइड हो गई, ये आपकी 3 4 ये आपकी एक साइड हो गई, 4 5 ये एक साइड हो गई और 5 1 ये एक साइड हो गई। किसी भी ये स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से खोलूं, मैं इसको कहता हूँ कि पॉइंट, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट इसका 4 है, ठीक है। जब मैं इसको यू करके खोल दूंगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट 4 है, जब इसको जब मैं स्क्वायर को यू करके खोलूंगा तो ये पॉइंट 1 यहाँ आएगा, ठीक है, पॉइंट 1 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 और ये फिर दोबारा से पॉइंट 1 आ जाएगा। ये पॉइंट 1 है, 1 2 3 4 1 1 2 3 4। अब जब हम इसको खोलेंगे तो 1 2 3 4 और ये 1.1 पे तो पॉइंट आ गया, ठीक है। बस ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमने 1 से खोला इसको, 1 से खोला 1 2 3 4 5 1, यही चीज हमने यहाँ पे करी है 1 2 3 4 5 1। हुआ क्लियर? ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, और 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसमें हमने यहाँ पर ए मेंशन कर दिया, बी जो लाइन 2 पे इंटरसेक्ट करेगी बी, तो हमने वहां पर बी लिख दिया। 3 पे जो सी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा हमारा, वो हमने सी बना दिया। 4 पे हमारा डी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, 4 बना दिया। 5 पे हमारा पॉइंट ई इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने 5 कर दिया, और दोबारा से हमारा ये ए पॉइंट आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे।
हम A to B, B to C, C to D, D to E एंड E to A ज्वाइन करेंगे। A B C D E A, ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आएगा इस प्रॉब्लम में। A B C C D D E एंड E A, और ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस आ गया इस प्रॉब्लम में। क्या बोलेगा ये डिस्टेंस कितनी होती है सर? कितने डिग्री डिस्टेंस पे लेना है? ए बी ऊपर नीचे हो रहा है। ए बी कौन सा वाला? यस सर। ये तो हमने बताया ना। दो कौन सा डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप? ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं 1 और 2 के बीच में, या फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप? वर्टिकल है, वर्टिकल। वर्टिकल हमने बताया था। अभी देखिए, वर्टिकल के लिए हमने ये बताया था, जब हम ये जो लाइन हम 30 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो जो इन वर्टिकल लाइंस पे जहां जहां पर ये कट करती हुई आ रही है लाइन, उन इंटरसेक्शन को हम हॉरिजॉन्टली पैरेलल लेंगे। इसीलिए तो ये पैरेलल लाइन मेथड कहलाता है। इसीलिए हाँ, पैरेलल हम इस चीज को लेंगे। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? एनी इश्यूज? यस सर। ऊपर आपने 30 डिग्री जो एंगल दिए सर, जी, वो नीचे से क्यों नहीं लिए? नीचे से ऊपर से क्यों लिए? थोड़ा सा ऊपर से नहीं लिया है, हमने सेंटर से लिया है। हमें ये बताया है कि ये एंगल हमारा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 30 डिग्री वाला एंगल। अगर वो हमें ये बताता है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर वो हमें ये कहता है कि हम यहाँ से 10 mm पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यही जो 30 डिग्री का हमने एंगल यहाँ बनाया है, वो हम यहाँ ना बनाकर हम कहीं यहाँ बनाते। ठीक है? अगर वो हमसे कहता है कि 40 mm पे कर रहा है, तो वो एंगल यहाँ बनता। उस केस में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस दूसरा बनता। इसको आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे होगा। और सर और दूसरा वगैरह कर सकते हैं? नहीं, अभी लीव नहीं कर सकते। अभी तो एक हुआ है। अभी आप ये कर सकते हैं, आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी। ठीक है? ओके सर। तो ये पहली प्रॉब्लम है जो आपको शीट पे बनानी है। ठीक है? अब 3:15 पे क्लास दोबारा शुरू होगी। 3:15 तक आप ब्रेक ले लीजिए। 3:15 के बाद अब हम बात करेंगे ट्रंकेटेड सिलेंडर की। तो ये आप बुक आपके पास होगी, बुक में हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं, उसी बुक की प्रॉब्लम कराएंगे। ये है प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 566 ऑफ योर बुक आरके धवन। ठीक है? ले ठीक है, तो अभी करा देते हैं। 566, पेज नंबर इज 566। So let's start with the problem. Problem says that a right cylinder of 30 millimeter diameter and 35 millimeter height of axis is cut by a sectional plane inclined at 30 degree to horizontal plane and passes 18 millimeter from base along the axis. अब देखिए, यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि ये जो है पास कर रहा है सेंटर से। इसने ये नहीं कहा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसने ये कहा इट पासेस फ्रॉम 18 मिलीमीटर फ्रॉम द बेस अलोंग द एक्सिस। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड सिलेंडर। ट्रंकेटेड मतलब जो ये हमने कट कर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेंडर है, आप उसका डेवलपमेंट बताइए। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो कहना चाह रही है वो ये कह रही है कि ये हमारे पास ये एक सिलेंडर था।
ठीक है, इसको जो है 30 डिग्री पे कट किया गया, इसको 30 डिग्री पे कट किया गया और एक्सिस के अलोंग दी एक्सिस जो है 80 मिलीमीटर हाइट पे जो है ना, एक्सिस यानी एक्सिस से अगर हम 80 मिलीमीटर लें, ये डिस्टेंस हमारा 80 मिलीमीटर हो, तो यहाँ से 30 डिग्री की लाइन ने कट किया उसको, ठीक है, ये एक 30 डिग्री की लाइन थी जिसने उस एक्सिस को कट किया। अब जो ये रिमेनिंग हमारा सिलेंडर बचा, ये जो रिमेनिंग हमारा सिलेंडर बचा, हम उसका ट्रंकेटेड, यानी इसको जो ट्रंकेटेड सिलेंडर हमने कहा, इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, रिपीट कर देते हैं इसको हम एक बार। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसको बुक में कहा कि सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 30 मिलीमीटर और उसकी हाइट ऑफ एक्सिस है 35 मिलीमीटर, ठीक है, एंड इट इज कट बाय अ सेक्शनल प्लेन। बुक तो सबके पास है ना? अगर अगर बुक नहीं तो फिर लेट मी, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कुछ समझ में आएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कौन? भाई कॉल की रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल मीट में हो ही नहीं पा रही, हम ट्राई तो कर रहे हैं, कल भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, आज हमने दूसरे स्टाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, अगर हो गई तो हम आपको सेंड कर देंगे, नहीं हो पाई तो गूगल मीट, हाँ नहीं, गूगल मीट अब कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो इसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो लेट मी राइट द प्रॉब्लम फॉर यू। You should note down this problem. A right cylinder of 30 millimeter diameter and 35 millimeter height of axis is cut by a section plane inclined at 30 degree to horizontal plane and passes 18 millimeter from base along the axis, ठीक है। Draw the development of the truncated cylinder, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप पे भेज देते हैं, ठीक है, ग्रुप पे भेज देते हैं। हाँ ये देखो क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम नंबर 4, हाँ यहाँ से देखो, जी बताइए। पेंटागोन और ये राइट सिलेंडर वाली प्रॉब्लम करनी है, ये करनी है एज असाइनमेंट, शीट बनानी है आपको उन दोनों की, ओके सर, ठीक है। हमने बुक में भेज पे आपको भेज दी है ये। अब हम इसका दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। तो इस प्रॉब्लम ने हमें ये बताया
कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 30 मिलीमीटर है। इसका ये डायमीटर जो है हमारे पास वो 30 मिलीमीटर है और हाइट इसकी है 35 मिलीमीटर। हाइट इसकी है 35 मिलीमीटर। इसकी एक्सेस इसके सेंटर पे आएगी। ये इसकी सिलेंडर की एक्सेस है, ठीक है। अब they are saying that height is 35 millimeter. It's cut by a sectional plane inclined at 30 degree to the horizontal plane. एक बात तो हमें ये पता चली इससे कि जो 30 डिग्री जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। ये हुई हमारी पहली बात। जो दूसरा हमें पता चला कि इट पासेस 18 मिलीमीटर फ्रॉम बेस। ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे यहाँ से 18 मिलीमीटर की जो हाइट हमने दी, 18 मिलीमीटर ये हुई। यहाँ से एक प्लेन कट हो रहा है, ये एक प्लेन कट हो रहा है 18 मिलीमीटर की हाइट पर। इसको 2D में बनाया तो समझ में आएगा, 3D में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो यहाँ से एक प्लेन कट हो रहा है, ये प्लेन कट हुआ है। ये हाइट जो है, ये जो हाइट है ये है 18 मिलीमीटर की। और ये जो एंगल है इस प्लेन का, इस प्लेन का जो ये एंगल है, ये एंगल है हमारा कितना है बताओ जल्दी से। 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा जो सिलेंडर बचेगा ये कट हो गया। ये सिर्फ इतना ही सिलेंडर बचेगा, नीचे का पार्ट। तो जो नीचे का पार्ट बचेगा हमारा वो कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो बस ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब स्टेप्स हमारे वही हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लान बनाना है इसका। तो कितने मिलीमीटर का है, 30 मिलीमीटर डायमीटर है, तो हम कितना लेंगे, 15 मिलीमीटर लेंगे। और 15 मिलीमीटर पे हम सबसे पहले इसका प्लान व्यू बना देंगे। प्लान व्यू बन गया। अब हम इस प्लान व्यू में इसको जो है इस प्लान को अब हम 12 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 12 इक्वल पार्ट्स में इसको अब हम डिवाइड करेंगे। 12 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि ईच पार्ट इज 30 डिग्री। ये जो हम 12 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो है वो 30 डिग्री का होगा। तो ये समझ में आ गया कि कैसे होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हम इसको नंबरिंग करना शुरू करते हैं। इस पॉइंट को हम नंबर 1 कहते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास बुक हो तो हम बिल्कुल बुक के हिसाब से नंबरिंग करना है इसमें। 2, Yes, sir. ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12,
ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। अगर आपको याद हो तो हमने ट्रंकेटेड सिलेंडर, आपको उससे सिलेंडर का आपको एक केस कराया था कल। सिलेंडर ये केस कराया था हमने कल, आपको याद आ गया? तो अब इसमें क्या किया था हमने? वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। तो we will make the lines like this. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये सारी लाइंस हम बना देंगे। ठीक है, अब दोबारा से अब हम जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये आपका जो है, इसमें क्या कहा था इन्होंने, सैंपल कहाँ चला गया? तो इन्होंने ये कहा था कि इट इज 35 मिलीमीटर ऑफ, इट हैज 35 मिलीमीटर हाइट। तो सबसे पहले we'll make a height of 35 millimeter and we'll draw this its front view। ठीक है, तो अब हम इसका ये फ्रंट व्यू हम ड्रॉ कर हमने कर दिया, ताकि आपको ठीक है, ये हमने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बता दे। यहाँ पर हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, 1 डैश। सर्कल कैसे बनाया आपने ये? ये 6 डैश और ये 7 डैश। इस सर्किल को हमने जो है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईच पार्ट इज 30 डिग्री ईच। तो आप कंपास के थ्रू 30 डिग्री के एंगल्स के साथ आप इसको 30 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप तो सर्कल की रेडियस कितनी है? भाई क्वेश्चन में दी हुई है रेडियस, ये सवाल तो मत कीजिए ना। डायमीटर 30 मिलीमीटर है। तो जब आपने ये बना लिया, देन आप दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइंस लेंगे। ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस हमने क्या बताया था? व्हाट वाज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो अगर इसका डायमीटर, हाँ, तो अगर इसका डायमीटर जो है वो 30 मिलीमीटर है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा बताइए? $94.20। 94.20। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, ये तो सिर्फ ऑलमोस्ट कल वाली प्रॉब्लम है। अब हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको याद होगा जब हमने लेटरिंग का कोर्स किया था, तो लेटरिंग में हमने क्या किया था कि हमने किसी भी लाइन को हमें डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ से 45 डिग्री की लाइन ली थी, और उसके बाद हमने उसमें ये कहा था कि हम उसको 12 जैसे अगर हमें 5 इक्वल पार्ट्स में उसमें डिवाइड करना है, तो हमने कहा था कि हम 5 डिफरेंट आर्क्स बनाएंगे, आर्क लेंथ, उसके बाद हम उसको ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही करेंगे, हम एक 45 डिग्री की लाइन लेंगे, तो यहाँ से हम 45 डिग्री की एक लाइन लेंगे और अब हम इस लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेंथ आपकी मर्जी है कि आप कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यू कैन टेक 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ये आपके ऊपर है। राइट नाउ आई एम टेकिंग इट एज 1 मिलीमीटर, बट जैसे कि मैंने पहले बताया था, अपॉन यू what distance you want to take. So I divide this line into 12 equal parts. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फिर हमने बताया था कि हम लास्ट वाली लाइन को लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद बाकी सारी लाइंस इसके पैरेलल हम बनाते चले जाएंगे। ये भी बताया था कि पैरेलल बनाने के लिए हम सेट स्क्वायर का या तो यूज करेंगे या फिर हम इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका जो है हम टाइम का हम डायरेक्टली इसको बनाएंगे। आप ये लाइंस ज्वाइन करके पैरेलल लाइंस ज्वाइन बनाएंगे इनको, और यह लाइंस हमारी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसको हम वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे। जब हमने इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बहुत इजी है, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बहुत इजी है। तो ये 12 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? प्रॉब्लम कौन सी हाइट? वो सब जो बॉक्स जो बनाया ऊपर में, ये हाइट, ये वाली हाइट। आपने क्वेश्चन नोट किया कि नहीं किया? यस तो आप खुद ही बताइए क्या हाइट होगी। सर, 35 35
ठीक है। अब यहाँ पे हमने बना दिया। अब क्या इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि इट पासेस फ्रॉम 18 mm फ्रॉम द बेस अलोंग द एक्सिस। तो जो हमारा 30 डिग्री का जो हमारा प्लेन क्रॉस कट करेगा वो एक्सिस की बेस से 18 मिलीमीटर की हाइट पे कट करेगा। तो एक्सिस हमारी ये है, सेंटर लाइन हमारी ये है, इसको हम यहाँ से 18 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेके एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ तक अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो हमें रोक लें, बता दें, और फिर उसके बाद यहाँ से हमें Sir, please repeat. Sir, due to network problem, I can't see the video. ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 18 मिलीमीटर की हाइट पे बेस से पॉइंट कट कर रहा, वो जो हमारा सेक्शनल प्लेन है वो कट कर रहा। How to cut this rectangle into 12 parts? अब आप ये बाद में पूछिएगा सवाल, ठीक है, क्लास के बाद इसको पूछिएगा। ठीक है। यह हमने क्वेश्चन बताया था कि 18 मिलीमीटर की हाइट पे ये प्लेन कट कर रहा है। तो 18 मिलीमीटर की जो हमारा एक्सिस था, सेंटर लाइन थी हमारी, सेंटर से हमने 18 मिलीमीटर पे एक पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो दिस पॉइंट इज एट 18 मिलीमीटर, और यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से रिमेंबर दिस इज नॉट द सेंटर, ओके, दिस इज एट 18 मिलीमीटर। ऑल्दो ये तकरीबन सेंटर पे ही आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्ली इट्स नॉट सेंटर। जो अभी किसी ने सवाल किया था ना कि सर ये सेंटर पे क्यों था। अब यहाँ से हमें जो है 30 डिग्री का एक लाइन बनानी है। तो हम फिर अपना प्रोटेक्टर लेंगे और 30 डिग्री पर इस लाइन को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हुए कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रंकेटेड, ये सर हमारा ट्रंकेटेड एलिवेशन आ गया। एनी इश्यूज के बाद भाई ट्रंकेटेड इसलिए कह रहे हैं, एलिवेशन हमारा इसलिए कहते हैं ट्रंकेटेड एलिवेशन, क्योंकि जब हमने इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो कट होने के बाद जो आ रहा है, जब हमारा सेक्शनल प्लेन ने हमें हमारे ये काट दिया इस सिलेंडर को, तब उसके बाद जो रिमेनिंग एलिवेशन बचेगा उसको क्या कहेंगे, ट्रंकेटेड एलिवेशन कहेंगे। तो ये हमारा ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले भी किया, हम यहाँ से पॉइंट जो 1 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, हम हॉरिजॉन्टली इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट, इसको हमने कह दिया ए डैश, ठीक है, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश एंड जी डैश। ठीक है, अब हम ए डैश को जब एक्सटेंड कर, ए डैश पॉइंट को जब हम हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ कहाँ कट करेगा, एक तो इस पॉइंट पे कट करेगा 1 पे, और दोबारा से 1 पे कट करेगा लास्ट पॉइंट पे। तो हमने इसको पॉइंट्स बना लिए। बी हमारा पॉइंट, पॉइंट बी जो है हमारा, वो कहाँ कट करेगा, पॉइंट नंबर 2 पे कट करेगा। तो हमने इसको यहाँ से एक्सटेंड करके वो पॉइंट नंबर 2 पे इसको बना दिया। ठीक है, पॉइंट सी हमारा कहाँ कट करेगा, पॉइंट सी हमारा पॉइंट नंबर 3 पे कट करेगा।
ये पॉइंट बी। पॉइंट सी हमारा पॉइंट 3 पे कट करेगा, ये हमने पॉइंट 3 पे पॉइंट सी बना दिया, ए बी सी। सिमिलरली हम पॉइंट डी को बनाएंगे, पॉइंट 4 से कट करते हुए पॉइंट डी आ गया। सिमिलरली हम पॉइंट ई को बनाएंगे, सिमिलरली पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी। ऐसे ही क्योंकि हमारे ये पॉइंट्स जो है आइडेंटिकल थे, तो पॉइंट 2 एंड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 12 आर आइडेंटिकल। हाँ, तो यही पॉइंट्स जो हमारे इनके साथ आए थे, ऐसे ही पॉइंट्स हमारे बाकी आते चले जाएंगे। तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए सी डी ई एफ जी। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से इसको पॉइंट को कह सकते हैं हम एफ ई बी सी बी ए। ठीक है, ये इसको एफ डैश ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश एक ही जगह पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कैसे है? यस सर। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब हम जो है हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर इस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। सिंगल स्ट्रोक भी करना है ना, मतलब वैसे नहीं करना लाइन बाय लाइन। नहीं, सिंगल स्ट्रोक में आपको पूरा का पूरा ये एक साथ बनाना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ये सरफेस आ गया फॉर दिस ट्रंकेटेड सिलेंडर। स्लोप के नीचे वाले जो लाइंस है वो क्या से? ये बाकी बची हुई लाइन जो है नीचे वाले को। हाँ, ये लाइन है ना, तभी तो सरफेस कंप्लीट होगा भाई। ये लाइन जो ए के नीचे जो लाइन थी हमारी, जो यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड किया था, तो ये जो लाइन बची हुई थी हमारी, हमने जो रेक्टेंगल में से जो इतना पॉइंट लाइन बची थी सेक्शन, वो हमारा कंप्लीट होगा। शायद मैंने उसमें नहीं बनाया, उसमें भी कंप्लीट ऐसे बनेगा। जो ये जो है अभी जो हमने ये बनाया है, इसमें भी कंप्लीट जो सरफेस आएगा वो ये आएगा। इसको मैंने डार्क नहीं किया था। क्लियर है? क्लियर है? कोई इश्यूज तो नहीं? सर प्लीज ये बता दीजिए 12 पार्ट में कैसे किया और ये कितनी डिस्टेंस है? 12 पार्ट में किया, 12 अपनी सर 12 पार्ट्स में हमने इसलिए किया क्योंकि हमने प्लेन को 30 डिग्री एंगल पे कट किया था। तो नहीं सर, उसकी लेंथ क्या है? कौन सी लेंथ है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? क्वेश्चन आपने नोट किया? क्वेश्चन नोट किया है? क्वेश्चन आपने नोट किया है? यस सर। तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है?
हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसको करस्पॉन्डिंग आप इससे ले सकते हैं कि 30 डिग्री एंगल से हमने कट किया है यहाँ पर सेक्शनल प्लेन से, तो इसी वजह से हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ईच एंगल अगर हमारा 30 डिग्री का होगा तो ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं बी सी डी ई एफ जी, इसको जो है हम आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिकली आप इस चीज को समझ लीजिए कि जितने सेक्शनल प्लेन जो हमारा जिस एंगल पे कट करेगा उस हिसाब से हम डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 30 डिग्री पे कट किया, तो हमारा कंप्लीट सर्किल बन गया। जी अगर सिलेंडर को सर ट्रंक ना करना हो, फुल सिलेंडर का सर पे टेबलेट बनाना हो तो सर कितना लेंगे पार्ट्स? 12 8 जैसे 30 था तब जो है इवन अगर आप पार्ट्स ना भी लें तो भी मैटर नहीं करता, ठीक है, अगर आप पार्ट्स ना भी लें उस केस में तो मैटर नहीं करेगा। ओके सर, ठीक है, बुक में बना रखा है वो देखिए, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप उसको सिर्फ एक जो हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, अब यहाँ पर हमें जरूरत थी तो डिफरेंट पार्ट्स की, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको आप 12 डिफरेंट पार्ट्स में ना ले लें, बल्कि आप इसको ले लें, आप 45 डिग्री का अगर आप एंगल लेते हैं तो आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है इसको, आप खाली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इसको, ठीक है। अपनी से मर्जी से लेते हैं। अपनी मर्जी से नहीं लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। हमने ये बताया आपको कि अगर 45 डिग्री का आप एंगल लेंगे तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 360 डिग्री आ जाए? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि ऐसी अगर आप यहाँ पर कोई और एंगल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का एंगल लेते हैं, तो फिर आप 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आपने जो ए बी कोई भी पॉइंट लिया है वो कितने अलग अलग है? जैसे कि ए लिया तो बी लिया तो समझ में तो मुझे पॉइंट मिल गया है, तो वो तो ये आपने इसके ऊपर भी तो बहुत जा सकता है, लेकिन कितना मिलना है? नहीं, बात समझ में नहीं आई है आपकी। तो जो बी है वो आप अपना यूज भी तो कर सकते हैं सबसे ऊपर वहाँ वो पॉइंट में, लेकिन यहाँ नीचे मतलब कि नीचे में कितना मिल गया है मतलब अब आपके क्वेश्चन नहीं समझ पाए, कौन सा पॉइंट भी, ये वाला स्मॉल में या कैपिटल में? सर स्मॉल में ये भी कहाँ कहाँ जा सकते, बॉक्स बना हुआ है ये वाला पॉइंट? सर बी कितना में का मतलब कि तेरा पॉइंट है। हाँ बी से दिए थे ये हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस ली है ना, यहाँ से ये जो हमने प्रोजेक्शन लाइंस ली है, पहला तो हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस ली, प्लस अब जब हमने यहाँ से हमने 30 डिग्री के एंगल पे ये जो लाइन कट करी है, ये जिन प्रोजेक्शन लाइंस पे कट कर रही है, जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है, वो पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी होंगे हमारे। मेजरमेंट नहीं लिया हमने इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो हमने लाइन कट करी है 30 डिग्री पे, ये जो हमारी लाइन है जो हमने 30 डिग्री पे कट करी है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये 30 डिग्री पे एक लाइन है, इसको कट किया है, उससे ये पॉइंट्स जो ये हमने यहाँ से वर्टिकली पॉइंट्स हमने जनरेटर्स, इन्हें हम कहते हैं जनरेटर्स, जो समझ गए ना, ठीक है। ये जो अंदर हमारे किसी भी इसके अंदर लाइन जो होती है ना, इसको भी बता देते हैं, ये कहलाती है जनरेटर्स और ये कहलाती है प्रोजेक्शन लाइंस। अगर ये जो है हमारे फ्रंट व्यू के अंदर है ये लाइन तो ये जनरेटर कहलाएगी, और अगर फ्रंट व्यू के बाहर है लाइन जो हम बाकी बना रहे हैं तो ये लाइंस हमारी क्या कहलाएंगी? प्रोजेक्शन लाइंस कहलाएंगी। इसको भी हमने क्लियर कर दिया आपको। अब ये समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? बना लेंगे सेम क्वेश्चन आप, इसको मटेरियल हम आपको भेज देंगे सेम, हाँ ये सेम
जमा करनी है आपको बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है? ओके, यू कैन लीव नाउ। सर अटेंडेंस हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, टेकन द अटेंडेंस, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू अब्दुल समद ने क्वेश्चन पूछा था अभी 2-3 दिन पहले। अब्दुल समद है क्लास में या और? हाँ हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था 2-3 दिन पहले कि सेरिफ और विदाउट सेरिफ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सेरिफ को आप, हाँ, सेरिफ जो है वो एक तरीके से रोमन लेटरिंग जो हम करते हैं वो बेसिकली सेरिफ होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमने आपको जो लेटरिंग में बताई थी डबल स्ट्रोक में या सिंगल स्ट्रोक में, अगर हमने ये ए बनाया है यहाँ पर, तो ये है सिंगल स्ट्रोक में या डबल स्ट्रोक में आप बनाएंगे, सिंगल या डबल में आप इसको बनाएंगे सिंपल इस तरीके से। लेकिन अगर आप यही चीज, इसी चीज को आप सेरिफ में बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो आप सेरिफ में इसको थोड़ा सा कैलिग्राफिक वे में बनाते हैं। तो ये जो हमारे पार्ट्स निकले, ये चीज, ये जो है डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये लेटरिंग सेरिफ हो जाती है, और ये हम सिंगल या डबल स्ट्रोक होती है जिसे हम कहते हैं सेंस सेरिफ, ठीक है? सेंस मतलब विदाउट सेरिफ। क्लियर हो गया? हाँ भाई, अब्दुल समझ? यस सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था सर, कुछ समझाइए तो अगर सर नहीं हो गया। अच्छा, तो देखिए, हमने ये बताया आपको कि जो हम सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक में लेटरिंग करते हैं वो सिंपल करते हैं इस तरीके से। ये लेटरिंग हमारी कहलाती है सेंस सेरिफ, जो सिंगल और डबल स्ट्रोक में हम करते हैं, ठीक है? अगर हम सेरिफ में करेंगे उसको, तो सेरिफ में थोड़ा सा ये कैलिग्राफिक वे में हम लेटरिंग करते हैं। तो जब इस तरीके से हम, अगर हम किसी उस लेटरिंग को करेंगे, तो सिमिलरली बाकी लेटर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये जो हमने एक्स्ट्रा हमने ये जो बनाया है, इनकी वजह से हमारी लेटरिंग क्या हो जाती है, सेरिफ लेटरिंग, ठीक है? हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका ज़्यादा यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ सेंस सेरिफ का यूज करते हैं। सेंस का मतलब हमने बताया विदाउट, तो इसका मतलब हो गया विदाउट सेरिफ। ये कैलिग्राफिक वे में जहाँ पे हमने बनाया, या हम रोमन लेटरिंग को भी देख लें, तो रोमन लेटरिंग भी सेरिफ टाइप ऑफ लेटरिंग कहलाएगी, ठीक है? यस सर ओके, ठीक है, आप लोग बाकी लीव कर लें। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर थैंक फॉर यू। लिसनिंग।